I'm starting. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. All set. All set. Good evening, friends. Welcome to this unique program. My name is Dr. Himanshu Buch, and I have got with me on the platform Dr. Nakshatra Mehua. He is a motivational trainer for the young Indians, a very dynamic trainer. I know him since last almost 10 to 12 years, of course, when he was young. And now he's has become a veteran trainer. I have got also Mr. Ambud Jain. He is also an international motivational speaker, a corporate trainer, and a career strategist. Now, friends, we three of us are going to share some of the ideas, some of the tips on the art of public speaking. And to start with, I invite Sri Ambud Jain, sir, to share his views. Welcome. Thank you very much, sir. Before I proceed, into this beautiful journey of public speaking, I would like to thank you, Dr. Himanshu Buch and Dr. Nakshatra, for allowing me with this opportunity to share my point of view on this wonderful, topic of public speaking alongside. मुश्किलों से हार जाना आसान होता है। मुश्किलों से हार जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से हार जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। So my dear friends, the moment we think about public speaking, it is all about getting a good start. So number one thing which comes to my mind when it is about public speaking, then you have to make an entrance. The entrance should be so dynamic that people should, they should be like, whoa, what happened? कौन आया भाई साहब? तो वो कहते हैं ना, your speech begins when you enter the room. No. ऐसा कहते हैं क्या? Exactly ऐसा ही कहते हैं. The moment you enter into the room, your speech starts. Not when you open your mouth, my dear friends. So therefore, the moment you enter into the room, your body language and you spell volumes. You have to be very positive and you have to be very creative in your approach. And yes, always be a little bold with your entrance specifically. My dear friends, the moment you enter into the room, you always should pretend that you are talking to just one person rather than a group of individuals. That can help you to ease yourself as a public speaker. Always take one-on-one strides. And dear friends, always try to discuss the topic, whatever the topic you are there to talk about, with passion and intent. I would request you to bring purposeful movements also during your talks, whatever you are talking. And one thing as a public speaker I admire is give your audience less. I'm sure you must have heard this beautiful phrase, less is more. So the less you give to your audience, the more impact it will create. So that means the strategy should be KISS. Keep it short and simple. And as a public speaker, one must always keep this thing in mind, and he or she must always be excited and enthusiastic. If a public speaker is not enthusiastic about himself or herself
about his or her topic, then I think the entire purpose of public speaking gets defeated. So now let me take you to the another very vital aspect about public speaking, and that aspect is preparation. So my dear friends, they say, there's a famous saying, prepare as if you are the worst and perform as if you are the best. So what you need to do is you need to go into the strides deep down and research well with your subject. The better you research your subject, the comfort you will gain out of it. और जितना आप कंफर्टेबल होते चले जाएंगे, उतना ही आपके लिए कंटेंट बोलना आसान होता चला जाएगा, क्योंकि आपको अपनी रिसर्च पर विश्वास होगा. You will have ample confidence in your own research. भैया मैंने बहुत रिसर्च किया है और अब मुझे कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने आप से आता चला जाएगा. और वो आपकी प्रिपरेशन के दौरान आप करते रहेंगे. जो अगली और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ कहने वाला हूं, जो प्रिपरेशन का एक सेकंड लेवल होगा, उसे हम कहेंगे यू हैव टू क्रिएट अ बेसिक आउटलाइन. अब मैं डिलीवरी क्या करने वाला हूं, जो ऑडियंस या जो ट्रेनीज या जो पार्टिसिपेंट मुझे सुनने के लिए आए हैं, अब मैं उन्हें किस तरह से अपनी बात को उनके सामने रखूंगा. सो व्हाट वी शैल बी डूइंग is we shall be creating a basic outline. अब ये बेसिक आउटलाइन कैसे बन सकती है? अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैंने एक कोटेशन के साथ स्टार्ट किया. तो हमें अपनी बेसिक आउटलाइन में क्या चीजें रखनी होंगी? कोटेशंस. अगर आप किसी टॉपिक पर बोल रहे हैं जहां पर डेफिनेशंस आती हैं, जैसे मान लीजिए आप लीडरशिप पर बोल रहे हैं, तो लीडरशिप की अपनी एक डेफिनेशन होती है. अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग राइटर्स ने लीडरशिप पर अपनी एक डेफिनेशन क्रिएट की होती है, अपनी एक परिभाषा दी होती है. तो आप उन्हें कोट कर सकते हैं. सो यू कैन लर्न अ फ्यू डेफिनेशंस. यू कैन यूज एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स कैन बी बोथ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स और रियल एग्जाम्पल्स. Yes, real examples does create a big impact in the minds of the audience, because the audience get connect very easily with the real examples. Like if you take example of Virat Kohli, then Virat is like a figure. Everybody knows about this name. But if you take example of any Tom, Dick and Harry, people may not be able to connect well with that example. The third thing, my dear friends, is statements. General statements passed by eminent individuals, eminent personalities. Like for example, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने एम्प्लॉयमेंट पर कुछ कहा हो, या बराक ओबामा ने एम्प्लॉयमेंट पर कुछ कहा हो, या स्टीव जॉब्स ने एम्प्लॉयमेंट पर कुछ कहा हो, हम वो स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर पब्लिक स्पीकिंग एक्सरसाइज, whether it's a speech or a presentation or a debate or whatever it is. We can always come up with small stories. These small stories add up to you as a public speaker, because your ultimate goal as a public speaker is to have attention of your audience throughout, which is not an easy affair, my dear friends. So that is the reason why you need to come up with things like these. And next is facts, figures and data. But facts, figures and data you must only use when you are very sure of them. अगर आपको वो पता है तभी आपको उसको यूज करना है. अब मैं आपको जो दूसरी वाइटल बात बताने वाला हूं एज अ पब्लिक स्पीकर, जो मुझे लगता है कि मैं शायद करता हूं, वो है कि यू हैव टू बी वल्नरेबल. यू हैव टू बी वल्नरेबल इन योर अप्रोच. Share something about yourself. Let the audience see the real you. क्या होता है पब्लिक स्पीकर कभी कभी इस एंजाइटी में कि यार मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि यार ये अपने बारे में बता रहा है, वो रिदमिक हो बैठता है.
वो इतना टेक्सचुअल हो जाता है चीजों को लेकर कि फिर ऑडियंस को लगता है यार ये तो किताब आ गई, हम इंसान से बात नहीं कर रहे. सो देयरफॉर पीपल मोस्टली like to learn from experiences. और वो कहते हैं ना कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है. तो जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी बातें हैं, जो आपने जिंदगी से सीखा है, जरूर कुछ शब्दों में ऑडियंस के साथ शेयर करें. द नेक्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स इज यू मस्ट नो योर मटीरियल. तो जब आप अपनी रिहर्सल्स कर रहे हो, जब आप अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो वहां पर एक चीज आपको करने की जरूरत है, दैट यू मस्ट मास्टर योर स्पीच. Try it for 5 times. If you're not comfortable, then go along for 5 more times. Then try it for 5 more times. क्योंकि जो अगली बात है वो यही है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान. करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान. रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान. That means practice, practice and practice. And they say that practice what makes a man perfect. जो भी व्यक्ति प्रैक्टिस से भागता है, आप समझ जाइएगा कि वो किसी भी चीज में, फिर चाहे वो क्रिकेट के मैदान में क्रिकेटर बनना हो, या संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संगीतकार बनना हो, और ये जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग की, इस क्षेत्र में पारंगत होना हो, एक चीज करना आवश्यक है, और वो है प्रैक्टिस. अगर मैं आपके सामने थोड़ा बहुत भी अगर बोल पा रहा हूं, तो इसके पीछे भी कुछ 1.5 दशक की प्रैक्टिस लगी हुई है. 1.5 दशकों की बराबर प्रैक्टिस, रोज सेशंस करना, रोज सेशंस में सीखना, रोज नए टॉपिक से जूझना, और उससे अपने आप को कॉन्फिडेंट फीलिंग देना कि मैं कल क्या था और मैं आज क्या हूं. तो वो जो कल और आज का जो डिफरेंस आप खुद अपने आप में महसूस करते हैं, वही आपको आत्मविश्वास देता है, और वही आपका मनोबल एज अ पब्लिक स्पीकर बढ़ाता है. So my dear friends, one more thing which I wanted to add to my part. Visualize yourself being fabulous. वो कहते हैं ना कि जो खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता. अब जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, और प्रिपेयर करते समय मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि यार मेरा अच्छा नहीं होगा, यार मैं कैसे अच्छा कर पाऊंगा, यार मैंने तो कभी करके ही नहीं देखा. तो जब तक मिठाई को खाकर देखेंगे नहीं, तब तक उसका स्वाद कैसे लगाएंगे सर? जब आप एक बार स्टेज पर उतरेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि यहां से बोलने में क्या मजा आता है. और सर मैं आपको बताऊं कि ये जो जगह है ना जहां से हम आकर बोलते हैं, इसमें बहुत नशा है. एक बार बोलना शुरू करते हैं तो लोगों को हाथ पकड़ के रोकना पड़ता है, भाई साहब इनफ, यू हैव स्पोकन फॉर more than your stipulated period of time. So I request you, always feel fabulous about yourself. Always give yourself a state of kudos. And I can assure you that feeling will always going to be a great feeling, and that feeling of greatness will give you that impetus to deliver a great delivery, or a speech, or a presentation. And my dear friends, in between कभी कभी क्या होता है ना, शुरुआत अच्छी हो जाती है, अंत अच्छा हो जाता है. बीच बीच में अपने आप को संभालना होता है एक पब्लिक स्पीकर को. जब बड़े बड़े सेशंस में आप होंगे, जहां पर आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक ऑडियंस के साथ रहना होगा, तो वहां पर बीच वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो उस समय में मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, टेक अ ब्रीदर, रिलैक्स, regather, recollect, because they say the eyes have it. Keep an eye contact with your audience, and always try to give them a sigh of smile, because that little smile which
Dr. Himanshu Bhuj and Dr. Nakshatra and Deepak Bhai is giving me here is a real sigh of relief, to be very honest. And that adds up to your confidence as a public speaker. And please, always remember one thing. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. And I'm sorry, I'm quoting it from Harivansh Rai Bachchan. And I have to take his name, otherwise, Mr. Amitabh Bachchan can even sue me. So I'm quoting from him. बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा है, और मुझे लगता है कि हर पब्लिक स्पीकर को ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है. डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है. जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है. मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में. मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में. बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और पब्लिक स्पीकर्स के लिए ये जो लास्ट बात मैं कहने वाला हूं, ये सबसे वाइटल है. असफलता एक चुनौती है. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होगी. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होगी. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी. So thank you so much everyone. It's my time to to keep a breather with myself, and I hand it over to you, Mr. Himanshu Bhuj, rather Dr. Himanshu Bhuj. So thank you very much. Thank you. Very nice. Ambuj Jain sir, very nice. Thank you. Thank you very much, sir. Beautiful. Superb, Ambuj ji, superb. Very nice. Thank you very much, Nakshatra. Thank you. Now, I invite Dr. Nakshatra Mehua to share his views. Welcome, Dr. Nakshatra. Welcome. Thank you so much, sir. It's an honor to be in the same screen as you. And as Ambuj sir ne kaha, he has also been in this field for almost 15 years. So I think I feel absolutely honored to be here. So मैं जैसे कुछ चीजें बता रहा था और अम्बुज जी ने जैसे शेयर किया. You remember KISS, right? So keep it simple, silly, or keep it short and simple जिसे कहा जाता है. So I'm going to keep it very short and very simple. So ऐसा कहा जाता है कि UCLA के एक स्टडी के मुताबिक आप जब भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, so there are absolutely necessary कि आप समझे कि हम कम्युनिकेशन करते कैसे हैं. So when we think about as a becoming a public speaker, हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे कंटेंट के ऊपर कि मैं क्या बोलने वाला हूं, मेरा टॉपिक क्या होने वाला है, मैं किस स्टोरी की बात करने वाला हूं, क्या फैक्ट्स की बात करने वाला हूं. That is necessary. That is absolutely necessary. But what is the most important part of your speech? That is not the content. That is not the words जो आपके मुंह से बाहर निकलने वाले हैं. That is actually आपके body language. So 93% of your communication is nothing, but it is non-verbal communication. और कहा जाता है कि जिस्म जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता. तो आपका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एज अ ट्रेनर, एज अ स्पीकर, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव नहीं है, बॉडी लैंग्वेज आपकी एम्पावरिंग नहीं है, तो वो इम्पैक्ट जो आप सामने वाले के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर लाना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं आएगी. और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं. उसमें से एक रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एमी कडी करके एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कहा था कि जब आप स्टेज के ऊपर आते हैं तो दो प्रकार की फिजियोलॉजी या दो प्रकार की बॉडी लैंग्वेज के बारे में वो बात करते हैं कि जो जनरल लोगों की होती है. सो व्हेन यू कम ऑन स्टेज, यू आर द अथॉरिटी.
यू आर द पर्सन इन पावर। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वो पावर की नहीं है, देन पीपल वोंट परसीव यू, और इससे भी ज्यादा कहूं, पीपल वोंट इवन लिसन टू यू। सो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पावरफुल हो। और उसके लिए एक ही चीज करनी है जो वो कहते हैं, वो है एक्सपांडेड फिजियोलॉजी या फिर एक्सपांडेड बॉडी लैंग्वेज। सो जब भी आप स्टेज पर आते हैं, नर्वसनेस की वजह से हमारा बॉडी जो है ना वो श्रिंक हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो ऑडियंस समझ जाते हैं। एंड एज अ ट्रेनर, जो हम फील करते हैं वही हमारी ऑडियंस फील करने वाली है। सो मैंने हिमांशु सर को बहुत बार देखा है, ही इज ऑलवेज इन अ ग्रेट स्टेट ऑफ माइंड, ही इज ऑलवेज हैप्पी, एंड व्हेन ही इज हैप्पी तो उनकी ऑडियंस भी ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाती है। इसे मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है कि जब आप हैप्पी है, आपकी ऑडियंस हैप्पी होने वाली है। सो व्हेन यू कम ऑन स्टेज, व्हाट यू हैव टू डू इज, बिफोर यू इवन स्पीक अ वर्ड, जस्ट मेक श्योर कि आप स्टेज के ऊपर आपकी दोनों फीट को जो सावधान पोजीशन में रहते हैं उससे थोड़ा बाहर निकालिए, अपने शोल्डर विड्थ जो है उससे थोड़ा हल्का सा बाहर निकालिए, टेक अ डीप ब्रेथ, चेस्ट बाहर निकालिए, लुक एट द ऑडियंस, स्माइल, टेक अ डीप ब्रेथ, एंड देन यू स्टार्ट योर लेक्चर। आप जिस तरीके से ऐसे करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल फील कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। द मिस्टेक पीपल मेक इज कि वो तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, अभी तो माइक हाथ में पकड़ा ही नहीं है, एंड दे आर लाइक हेलो गुड मॉर्निंग, रिलैक्स, हौले हौले। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि यू ऑलवेज हैव टू एक्सपांड योरसेल्फ, एंड इफ यू डोंट एक्सपांड, वो मैसेज लोगों तक नहीं जाएगा। और इसी के साथ हम बात करते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि जब हम अपने पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत करते हैं, वी ऑलवेज फील नर्वस। आई एम श्योर कि यहाँ पर भी जो हमारे साथ जितने भी वेटरन है, वो भी कहीं ना कहीं मानेंगे कि हमें भी इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी, इफ वी हैव अ सर्टन काइंड ऑफ ऑडियंस, या ऐसे लोग हैं ऑडियंस में, जैसे कि मेरे सामने अभी है, कि दे आर वेरी डिग्निटरी या फिर बहुत एक सर्टन लेवल के हैं, वी ऑल हैव बटरफ्लाइज। सो इफ एज अ स्पीकर यू रियलाइज दिस कि हर एक को नर्वसनेस होती है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अगर ये चीज हम समझ लेते हैं ना कि डर सबको लगता है, देन व्हाट वी नीड टू डू इज कि उस डर को ओवरकम करने के लिए हमारे पास हथियार क्या है। सो हथियार और कुछ नहीं है, हथियार एक ही है जो मैंने अभी पहले बताया था, इट इज योर ब्रीदिंग। सी, मेरे एक स्पीकिंग कोच है, उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा ब्रीदिंग ठीक हो जाएगा, इफ योर ब्रीदिंग इज इन कंट्रोल, तो तुम्हारे थॉट्स कंट्रोल में आ जाएंगे, एंड इफ योर थॉट्स आर इन योर कंट्रोल, आपकी स्पीच भी कंट्रोल में आ जाएगी। एंड ये सारे जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जितने भी सिंगर्स होते हैं, वो सभी लोग ये जानते हैं। सो ब्रेथ कंट्रोल एक बार आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको नर्वसनेस निकल जाएगी। और साथ ही साथ व्हेन यू स्टार्टिंग आउट, हमें ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे हिमांशु बुच सर जितना जितना अच्छा बोलना है, अरे मैं स्टेज पर जाके नर्वस होने ही वाला हूं, बिकॉज मैंने एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा लगा दी। सो आई डोंट हैव टू बी लाइक हिम, आई हैव टू बी ऑथेंटिक। और जब हम जेन्युइन हो जाते हैं, नर्वसनेस चली जाती है। सो दैट इज व्हाट नीड टू रियलाइज। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लोग नर्वस इसलिए होते हैं क्योंकि वो कंपेयर करते हैं अमिताभ बच्चन के साथ। सो डोंट कंपेयर, इसलिए मैं कंपेयर ही नहीं करता, मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूं उनके जैसा नहीं बनने वाला। सो नर्वसनेस आती ही नहीं है। सो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल, अगर नर्वसनेस को हमें ओवरकम करना है। उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके स्क्रीन पर भी आप जो भी व्यूअर्स हैं वो देख पाएंगे, ड्रेस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग। और जब मैं लोगों के साथ बात करता हूं कि हाउ डू यू नो कि आप हॉस्पिटल में हैं और एक डॉक्टर की एंट्री हुई है, हाउ डू यू नो कि आप कोर्ट में हैं और आपको पता चलता है कि जज आ गए हैं। इमेजिन कीजिए कि आप हॉस्पिटल में हैं और वो आप बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, और वहां पर डॉक्टर जो है वो शॉर्ट्स में और गंजी पहन के आते हैं, हाउ वुड यू फील? एंड ही इज लाइक नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आप उस हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं कराएंगे जस्ट बिकॉज कि हम ऐसा कहते हैं एज ए इंडियन स्पेसिफिकली कि हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। बट टू बी ऑनेस्ट, जब आप स्टेज पर होते हैं ना, लोग आपको जज करते हैं, ऊपर से नीचे पूरा देख लेते हैं कि इसको मैं सुनूं या मेरा पैसा गया। और अगर आप अपना ड्रेस कोड सही लेकर नहीं जाएंगे, इफ यू आर नॉट ड्रेस अप फॉर द ओकेजन, तो वो कभी भी आपको सुनने नहीं वाले। सो ऑलवेज मेक श्योर, मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी आपकी ऑडियंस है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही बहुत ही बड़ा ड्रेसअप होकर जाना है। आपकी ऑडियंस जिस प्रकार की है उससे 10% आपको अच्छा पहनना है। सो अगर कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, वहां पर लोग कुर्ते पजामे में है, तो आपने थोड़ी ऊपर कोटी डाल ली, जिससे आप 10% उनसे अथॉरिटी में आ गए और आप उनके साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं। जैसे अंबुज जी ने यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा सा अटायर पहना हुआ है,
एंड ही इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो देखिए उनकी आइडेंटिटी के साथ उनके कपड़े मैच कर रहे हैं। सो जो नॉर्मली ब्लेजर पहनते हैं, जो नॉर्मली सूट पहनते हैं, उन्होंने 10% अपने कपड़े को थोड़ा एम्पलीफाई किया हुआ है, सो विच इज नेसेसरी। आपको बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, वरना लोग आपके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो यू ऑलवेज हैव टू नो योर ऑडियंस, कि आप किस प्रकार की ऑडियंस के साथ बात करने वाला है। सी माई ऑडियंस इज वेरी यंग ऑडियंस, तो इसलिए मैं हमेशा टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लेजर डालता हूं, बिकॉज अगर मैं उनके सामने बहुत ही बहुत ही सूट पहनकर जाऊंगा, टाई पहनकर जाऊंगा, आई नो कि उनको लगेगा कि नहीं, ये तो हमारे जैसा नहीं है। आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद देम। एंड सिमिलरली हिमांशु सर को भी आप देखें, ही इज ऑलवेज इन वेस्ट कोट शर्ट में है, एंड ही हैज अ टाई, बिकॉज वो भी कॉर्पोरेट ट्रेनर है और उनका टारगेट ऑडियंस वो है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप स्पीच देने जाते हैं कि आपका ऑडियंस क्या है, और 10% उसको आपको इंप्रूव करना है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे अम्बुज सर ने कहा कि ये स्टेज है ना, एक नशा है, कि पहले नर्वसनेस होती है, इसलिए ये थॉट होता है कि कब फटाफट खत्म करो, और जब वो नर्वसनेस चली जाती है तब पता है क्या होता है, तब लगता है कि अब तो मैं माइक किसी को नहीं दूंगा, बोले अब तो मेरी बारी है, अब तो मैं भी खत्म, मैंने ही शुरू किया है, मैं ही खत्म करूंगा। आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी होगी, जिस मूवी को खत्म होने के बाद यू रियलाइज कि यार ये मूवी ना थोड़ी लंबी चली थी। एज ए ट्रेनर भी बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि हमें लगता है कि यार ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा था, लेकिन इसको जल्दी खत्म करना था। तो ये हमें नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, पेલું क्या है गुजराती में हमारे यहाँ कहते हैं कि दाढ़માં રહી જવું જોઈએ। मतलब आप एज अ ट्रेनर लोगों को आपका कंटेंट इतना मत दे दो कि वो ओवर ईटिंग करके थक जाए। आप उनको इतना ही दो कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे मांगने के लिए आए कि सर आपने लास्ट टाइम ना वो थोड़ा रह गया था, वो थोड़ा वापस दीजिए। सो ऑलवेज जब ऑडियंस पीक पर है ना, जब ऑडियंस मजे कर रही है, तब आपको निकल लेना चाहिए, क्योंकि वो सही ट्रेनर है, वो समझदार ट्रेनर है जो सही वक्त पर एग्जिट ले लेता है। सो ऑलवेज 10 मिनट्स मैं तो कहता हूं अर्ली खत्म कीजिए, उससे अपनी एज अ ट्रेनर इज्जत बहुत बच जाती है। ऐसा मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि नो बडी वॉन्ट्स कि पीछे पीछे दूसरी शिफ्ट वाले लोग तैयार कर रहे हैं, दे आर लाइक कह रहे सर खत्म करो खत्म करो, और सब लोग को घर पे जाना है, सर भूख लग रही है। सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि 10 मिनट आप जल्दी खत्म करें। उसी के साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपके साथ बात की थी कि 93% जो है कम्युनिकेशन वो नॉन वर्बल है, और उसमें भी 55% ऑफ योर कम्युनिकेशन इज जस्ट बॉडी लैंग्वेज, और बाकी का जो 38% है विच इज योर वॉइस टोन, योर टोनालिटी। एज अ ट्रेनर मैं कहता हूं आपका वॉइस जो है ना वो सुपर पावर है। और आप जितने भी महान स्पीकर्स को देखें, जितने भी महान स्पीकर्स हो, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं टोनी रॉबिन्स ले सकते हैं आप, या फिर शशि थरूर फॉर एग्जांपल इंडिया में है, या एनी डैम स्पीकर, बराक ओबामा की आप देखिए, दे ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, एंड वो वन थिंग इज दे ऑल हैव डीप वॉइस। नाउ डीप वॉइस का मतलब है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, इसलिए हमारी आवाज ना बहुत पतली होती है, तीनी गुजराती मैंने कहे तीनों आवाज, और वो आवाज किसी को भी सुनना पसंद नहीं है। और जैसे हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन आ जाता है तो हमारी आवाज भी थोड़ी हैवी हो जाती है, बेस निकलता है। और जब अमिताभ बच्चन कहते हैं विजय दीनानाथ चौहान, तो वो बेस में से निकलता है, और जब आपकी आवाज बेस में से निकलती है, लोग आपको कॉन्फिडेंट इंसान की तरह परसीव करते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि ऑलवेज यू हैव टू हैव डीप वॉइस। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है कि आप कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन मुंह के द्वारा करना है आपको। सो अपना मुंह खुला रखिए एंड यू कैन डू कपालभाति। सो जोर से आपको मुंह में से इस तरीके से, जैसे ही अपने मुंह में से सांस निकालेंगे, आपकी जो डीप वॉइस है वो धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। और लास्ट का टॉपिक मैं फटाफट से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट, ये ऑलरेडी अम्बुज सर ने शेयर कर दिया है कि इफ यू वांट टू बिकम कॉन्फिडेंस, मैं एक ही वर्ड आपको देना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल। सी, अगर आप स्टेज पर कॉन्फिडेंट नहीं है, दैट मीन्स कि आप स्टेज पर कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आप स्टेज पर कंफर्टेबल बनना चाहते हैं तो क्या करना है, जो भी मौके आपको मिलते हैं स्टेज पर जाने के लिए या फिर कैमरा के सामने, वो हर एक मौकों को यस बोलिए। हो सकते हैं बर्थडे पार्टी, वो हो सकते हैं सोशल फंक्शंस, हो सकते हैं कोई 5 या 10 लोगों के सामने बोलना। जितना आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, और हिमांशु बुच और अम्बुज जी मेरे साथ अग्री करेंगे कि एज अ ट्रेनर हम कंटेंट के बारे में बहुत लास्ट में सोचते हैं,
बिकॉज इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो हमें यही कहता है कि भाई बोलो कितने घंटे देना है, उसके हिसाब से विल डिसाइड द कंटेंट. Why? Because being comfortable is more important. So guys, thank you so much for listening to me, and thank you so much Himanshu sir and Ambut ji and Deepak ji, you as well. Thank you so much. Very nice, very nice. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Very nice. Thank you, sir. Excellent, excellent. Thank you very much, Ambut sir. Thank you very much, Dr. Nakshatra. So nice of you. Very nice. I think मुझे एक बात कहनी है that today I was in a class of Shri Ambut sir and Dr. Nakshatra, and I think that I have learned a lot. I have learned a lot today, and I was jotting down my points also. So it's a refreshing session. Thank you very much for this wonderful tips, Shri Ambut ji and Dr. Nakshatra. Friends, now I think I will also share some of the views. And here I am. My name is Dr. Himanshu. And I would like to start with one of the most important thing. And that is that can we, when we are facing the audience, it is very important that you should always see the intellectual capacity of the audience, the language power that you are going to use. Maybe some of them are not intellectual, some of them are average, some of them are above average, and the language power. English, can be Hindi, can be Gujarati, can be Marathi, can be Punjabi also. But the respective language that you are using is very, very important. The language power comes with good amount of reading. एक उर्दू शायर ने ऐसा लिखा है कि अल्फाज बोलने के लिए जहन में किताबों का महल चाहिए. अल्फाज बोलने के लिए जहन में किताबों का महल चाहिए. To speak one word, I need libraries of books. Now, unless and until a trainer does not read 1 hour daily, I think he cannot become a good, fantastic trainer. So my humble request in the art of public speaking is, if you really want to improve your language power, if you want to be effective, then it is very important to read at least 1 hour daily. Leaders are good readers. So if you want to lead in the public speaking, then leaders must read a lot of books. I come to a very important phenomena in public speaking, which is, I think, humor. How you add humor. And just want to tell you that humor is not everybody's cup of tea or everybody's cup of coffee. Because unless and until you are having that control over the humor, don't use humor. Jokes बोल दिया, लोग हंसने लगे, लेकिन लोगों का हंसना बंद नहीं हुआ, then you have to wait. Why you have to wait? Because when the audience is laughing and when you go on speaking in the laughter voice, people are not able to register what you are talking. If suppose 200 people are laughing and you go on delivering your message, the next line, people are not listening to you. So with humor, immediately comes the power of pause. The power of pause.
Victor Hugo has written one beautiful line that words are important, words are very important, effective, but the poses are more effective than the words. So it is very important that whenever you are speaking, the pause connects with the audience. The humor also connects with the audience. Humor से आदमी relax हो जाता है. Telling a story, telling an anecdote. Story is also fine-tuning your public speech. But whenever there is one beautiful anecdote about Dale Carnegie, he was speaking more than 5 to 6 hours. One of his friends told that, please, Mr. Dale, you come and speak for 20 minutes in our birthday party. He told that 20 minutes, I will have to have my homework for at least 1 month. 1 month? Okay, then you can speak for 40 minutes. Dale Carnegie told that I would need 15 days to prepare, 15 days. Now this person was surprised. So he told that, okay, then you speak for at least 1 hour. He told, then I need 10 days to prepare. Now that person is enjoying the fun. So he told, okay, you can speak 3 hours. Dale Carnegie told, let's go and start. To speak for 4 hours, it is very easy. To speak for 40 minutes, you have to concise the entire, your speech of 4 hours into 40 seconds. It's not a joke. It's not a joke. You have to be effective. If you are effective in 4 hours, you should be effective also in 40 minutes. The thing is how you are catching up your entire preparation. अम्बुज सर ने बोला, डॉक्टर नक्षत्र सर ने बोला कि हम लोग प्रिपरेशन, जो हमारा नोट्स, जो बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड, ये सब है, लेकिन उसके ऊपर जो आता है वो है आपकी तैयारी, आपकी प्रैक्टिस, जो अम्बुज सर ने बोला. लेकिन हर बार रिहर्सल करना नामुमकिन है. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे and conducting more than 1 to 2 hours session, which I am observing Ambuj sir and Dr. Nakshatra, that they are continuously practicing. They are facing the audience. So the confidence level that you see in their eyes, in their voice, their tonation, their pronunciation is very important. 1972, I was... of course, I have acted on stage for more than 32 years. So there was one of my director told me that you go on the stage and speak this one shloka of Bhagavad Gita. And with one breathe only. जो अभी डॉक्टर नक्षत्र ने कहा कि breathing. So you just inhale. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय. मैंने बीच में सांस नहीं ली है. मैंने बीच में सांस नहीं ली है. The thing is, in 1972, one of my directors of the drama told me that you have to speak from the navel, you have to speak from the stomach. If you speak from the throat, you will get tired. If you speak from the navel, you will never get tired. So all these public speakers, including Morari Bapu, including our Prime Minister, respected Shri Narendra Modi sir, they are all practicing from the stomach. The thing is, unless and until, before going on the stage, remember what I want to speak, make a PowerPoint presentation, make mind maps of some important points, and then you can connect with the audience with strong feeling. And as rightly said, that before you go on the stage, have three deep breaths.
so that you can gain control over your own self. Friends, I think it is a huge subject. It is a very huge subject, and we cannot really do justice in 50 or 60 minutes. But I think we three of us, our team members, Shri Ambud sir and Dr. Nakshatra sir, has given us a beautiful cooperation, and they were kind enough to share their ideas and their learnings with all of us. I thank you very much, Shri Ambud sir. I thank you, Dr. Nakshatra. I think this is going to be at least helpful. Of course, not very useful, but at least useful tips for younger generations, even for the corporate world, even to the managers and CEOs. Thank you very much for joining me. I wish you all the best. Shri Ambud sir, thank you. Thank you, Dr. Nakshatra. And Deepak Bhai, thank you very much for your technical assistance. So nice of you. Thank you. Goodbye. Good night. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much.